अंगारा प्रजेश नगर, दूसरा नहीं। एक बात जीवन में याद रखना, जो आपको फूल का हार पहनाता है ना, वही आपको जीवन में हार देने के लिए तैयार हो सकता है। हार हार जीत देने के लिए नहीं, हराने के लिए तैयार होगा। इसलिए कोई आपकी वाहवाही करे वो भी नहीं सुनना है, और कोई आपके कोई कुथली करे उसको भी नहीं सुनना है। हाथी जाए बाजार, कूतरा बसे हजार, जेने जे बोलो बोले, તમે તમારા લક્ષ્ય સુધી પહોંચતા રહો। एक दुनिया है, यही लोग थे, दूसरे कोई नहीं थे। जो प्रशंसा करने वाले थे वही निंदा करने वाले निकले। सती का पैर भारी हुआ तो भी सती प्रजेश नगर में गई, पिता के आंगन गई। सभी मेहमान बहुत सारे बैठे थे, मेहमान भी इधर उधर बोलने लगे, ले वगैर आमंत्रण आई। सभी मेहमान नहीं बोलने जैसे शब्द बोलने लगे, और पिता के गुरु बेटी का अनादर हो रहा है। ये कितना बड़ा पाप लगता है। और बहु हृदय से कहूं छो तमने कि क्यारे तमारा घर में दीकरा दीकरा लग्न होय, बहनों दीकरीओने पहला सन्मान आपजो, एमने पहला राजी करजो। बीजो मेहमान भले नाराज थाय, वांधो नहीं, न करिए नाराज, पण घरनी बहनों दीकरीओने खूब साचवी, तेने खूब आदर आपो, तेने खूब मान सन्मान आपो। काकी ये घरनी दीकरी छे। અને મેં ઘણીવાર કથામાં કહ્યું છે, પ્રસંગોને સફળ બનાવવા માટે એક ફઈબાને નણંદબાને ખૂબ સાચવવા। આ બે પાત્રો એ ફૂલ પણ બરસાવી શકે છે ને અંગારા પણ બરસાવી શકે છે। કારણ કે ફઈબા પણ આપણા ઘરની દીકરી હોય, નણંદ પણ આપણા ઘરની દીકરી હોય છે, અને એ બે પાત્રોને સાચવી લેવાના રાજી ખુશીથી। અહીંયા દક્ષ મહારાજને આંગણે સતી પ્રવેશ કરે, મહેમાનો બધા અપમાન કરે છે। મહેમાનોની વચ્ચે બેઠેલી માં સતીને જોઈને ઊભી થાય, દોટ મેકી સતીની પાસે આવે છે, અને માન દીકરી ભેટીને મળે છે। માં વીરણી રડી પડે છે કે બેટા, તારા પિતાએ તને આમંત્રણ નથી આપ્યું, પણ મને ભરોસો હતો કે મારી દીકરી આવશે। તારા વગર દીકરી પ્રસંગ અધૂરો લાગતો હતો। માન દીકરી એકબીજાના ખંભા પર માથું નાખી અને એકબીજી દીકરી સુખ દુઃખની વાતો કરે છે। અને માં વીરણી કહે છે, બેટા જા યજ્ઞનાળના દર્શન કર, પાછી આવ જલ્દી, આપણે માં દીકરી બેઠા બેઠા સુખ અને દુઃખની વાતો કરીએ। પણ માને ખબર નથી સતીની છેલ્લી મુલાકાત છે। આ દુનિયામાં કોઈને ખબર નથી કોની કઈ પહેલી મુલાકાત ને કોની છેલ્લી મુલાકાત। તેથી જીવનમાં જે મળે તેની સાથે સારો વ્યવહાર કરો, મધુર વ્યવહાર કરો, કડવો નહીં, અપમાનજનક નહીં, સન્માનજનિત વ્યવહાર કરો। કારણ કે એ માણસ આપણને મળ્યો છે, એ માણસ ફરી મળે ન મળે શું ખબર આપણને। તેથી જીવનની વિચિત્રતા છે। ઘણીવાર મનની મનમાં રહી જાય ભાઈ। ઘરમાં જે કાંઈ હોય, તમારો પતિ જ્યારે બહાર કામે જતો હોય ને ત્યારે એકદમ પ્રસન્ન મોઢે તેને વિદાય આપો, અને સાંજે કામેથી આવે ને એકદમ હસતા હસતા તેને આવકાર આપો કે બહુ થાક લાગી ગયો છે, અમારા માટે બહુ મહેનત કરો છો, પતિનો થાક ઉતરી જાય, પણ અમારા માટે કરો તમે નહીં, એવું નહીં, પ્રશંસા કરો, તેને બિરદાવો। માં ને દીકરી ભેટીને મળ્યા છે। માં કહે જા બેટા દર્શન કરીને પાછી આવ, પણ માને ખબર નથી કે સતી હવે પાછા આવવાના નથી। યજ્ઞનાળના દર્શન કરવા જાય છે। શિવનું કોઈ જગ્યાએ સ્થાપન નથી। પિતાજીની સાથે વાર્તાલાપ થાય છે। દક્ષ મહારાજ પોતાની પુત્રીનું અપમાન કરે છે, અને ભૂલથી પણ કોઈની દીકરીનું અપમાન ન કરવું। અરે આપણી દીકરીનું અપમાન ન કરવું, પણ કોઈની બેન દીકરીની દીકરીઓનું પણ અપમાન ન કરવું, સૌનું સન્માન કરવું। સતીને યાદ આવે છે કે દક્ષ મહારાજને મેં વચન આપ્યું હતું, જ્યાં સુધી તમે સૌનું માન સન્માન આદર કરતા રહેશો, ત્યાં સુધી સુંદર લીલા કરતી રહેશ। આજે અભિમાની બની અને શિવનો અનાદર કર્યો છે, મારું પણ અનાદર કરી રહ્યા છે। અને इस समय चंद्रमौली बृहस्पति याद करे, योगाग्नि को प्रकट करके सती ने अपने देह का त्याग कर दिया। अंत समय शिव जी को याद किया, सती मरत हरिसन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। शिव जी को याद करते करते श्री हरि को कहा, जन्मों जन्म तक मुझे महादेव का सानिध्य मिले, शिव जी का चरण मिले। सती ने अपना देह शांत कर दिया। भगवान शिव जी को कैलाश में पता लगा, बाबा ने जटा में से वीरभद्र और काली को प्रकट किया। वीरभद्र को आज्ञा की दक्ष को दंड करें। वीरभद्र मुखार करते हुए प्रजेश नगर में आए। दक्ष महाराज वीरभद्र का युद्ध
और भृगु ऋषि ने युद्ध रोकने के लिए बहुत प्रयास किया। अंत में युद्ध नहीं रोका गया और युद्ध के परिणाम स्वरूप दक्ष के धड़ का मस्तक अलग यज्ञ कुंड में जलकर भस्म हुआ। भृगु ने देखा तो सब चले गए थे, जो निमंत्रण को मान देकर आए थे सब मोटे उपाड़े आया था बधाई। सुर नर मुनिवर की यही रीति, स्वार्थ लागत कर सभी, सुख में सब आपके साथ हैं, दुख में कोई नहीं रहता। जब सूर्य उगता है तब सब दरवाजे खोलते हैं, जब सूर्य नीचे अस्त होता है तब सब अपने दरवाजे बंद करते हैं। अंधेरे वक्त साथी को कौन याद रखे, सुबह होते ही चिराग बुझा देते हैं। ये दुनिया विचित्र दुनिया है। महादेव को याद किया, भगवान शिव पधारे। भृगु ने कहा मेरे दक्ष को जीवित करें। महादेव ने कहा जो जो मिले इसका मस्तक लाइए, बकरे का, पशु का मस्तक। दक्ष को जीवित किया। दक्ष महाराज ने महादेव की स्तुति की, भगवान मुझे क्षमा कर दें, मैंने मेरे गुरु भृगु ऋषि की बात नहीं मानी, भगवान मैं क्षमा चाहता हूँ। इसी समय दक्ष महाराज ने शिव जी की बहुत लंबी स्तुति की है। नमामि देवं वरदं वरेण्यं, नमामि देवं च सदा सनातनं। भगवान शिव के बहुत लंबे सुंदर स्तुति दक्ष महाराज और शंकर भगवान के बारे में जो गाया है बहुत सुंदर है। बाद में स्तुति दक्ष की पूरी हुई। महादेव ने कहा दक्ष महाराज आज से एक बात महामंत्र की तरह याद रखिए, ऐसा व्यवहार कभी न करना चाहिए जो आपका व्यवहार आपके लिए दुख का कारण बने। दूसरों के प्रति जो आप व्यवहार करते वही व्यवहार आपके लिए फलित होने वाला है। इसलिए दूसरों के लिए शुभ चिंतन करेंगे तो आपका शुभ होगा, दूसरों का हित सोचेंगे तो आपका हित होगा। ये ब्रह्मांड आकाश में से पाताल में दिशा में से नहीं, इस ब्रह्मांड का प्रारंभ जहां बैठे हैं, जहां खड़े वहां से होता है। इसलिए जो कुछ आप बोल रहे हैं वहां से प्रारंभ होगा। इसलिए शुभ चिंतन करें, शुभ विचार करें, कोई नकारात्मक नहीं सकारात्मक बने। भगवान शुभ ही करने वाले हैं। जल से भरा हुआ सरोवर, पत्थर जहाँ गिरता है ना वहां से तरंग प्रकट, पूरा तरंगे सरोवर में मिलती है। वैसे जो हम बोलते हैं आपसे शुरू होगा। इसलिए ओम नमः शिवाय मंत्र का अर्थ है, ओम का अर्थ है निराकार ब्रह्म, नमः का अर्थ है नमस्कार। शिव और शिवाय पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करो। शिव शब्द का अर्थ है कल्याण, पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करो, पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करो। तो पहला कल्याण किसका होगा? जो बोल रहा है उसका कल्याण होगा। इसलिए आज से हमारी मानसिक स्थिति को बदलने का हम प्रयास करेंगे। शिव जी ने दक्ष महाराज को बोध दिया, बाद में दक्ष महाराज ने प्रार्थना की और वहां भगवान लिंग रूपेण सतमः दक्षेश्वर महादेव लिंग स्वरूप में भगवान शिव वहां प्रकट रहे। बाबा ने सती का शव उठाया, शव लेकर हिमालय पहाड़ों के चट्टानों कंदराओं, हिमालय पहाड़ की छोटी निरंतर इधर उधर यहाँ वहां, हाथ में शव सती का, कभी कंधे पर कभी गोद में, ऐसे ही जटा घुल गए, आंखों में से अश्रु बिंदु दड़ 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 दड़। क्योंकि भगवान शिव सती का आदर भी करते थे और शिव जी सती को प्रेम भी करते हैं। उनका गृहस्थ जीवन धन्य है जो पत्नी का आदर भी करे और पत्नी को प्रेम भी करे। उसको शिव दाम्पत्य कहते हैं, उसको दाम्पत्य कहा जाता है। बाद में देवताओं ने विष्णु जी को कहा, विष्णु ने चक्र को छोड़ा और सती के अंग अलग हुए, जहां जहां अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ प्रकट हुई, दीप प्रज्वलित, दीप ज्योति प्रकट, जहां अंग गिरा वहां दीप, जहां अंग गिरा वहां दीप, और शक्तिपीठों का वर्णन किया गया। बाद में शंकर जी ध्यानस्थ हो गए और सती ने दूसरा जन्म, ते ही कारण ही में गिरी गुरे जाए जन्म पारो कितनो पाए। दूसरा जन्म सती का नगाधिराज हिमालय के वहां हुआ, माँ मैनावती के वहां। ये भी कारण है मैनावती के वहां क्यों, जो कि सती जब तपस्या करने के लिए आए थे तब मां मैनावती ने सती की बहुत सेवा की थी। दक्ष महाराज की पुत्री तपस्या कर रही है, ऐसी पुत्री मुझे मिलनी चाहिए। और सती ने तप पूर्ण किया और मां मैनावती को कहा, मां मैना तेरी कामना है ना, मेरे जैसी पुत्री तुझे मिले, मैं दक्ष महाराज की पुत्री हूं, मेरे जैसी तपस्विनी पुत्री मिले, मां
आपने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए मैं वचन देती हूँ दूसरा जन्म माँ मैं तेरे वहां प्रकट रहूंगी। ते ही कारण हिमगिरी गुरु जाय जन्म पार होते तनु पाए। यही कारण नगाधिराज हिमालय के वहां माँ मैनावती के वहां पुत्री रूप में प्रकट हुई, जिनका नाम है पार्वती। नारद जी ने पार्वती को महादेव की महिमा सुनाई और पार्वती का चित्त महादेव को समर्पित हो गया और पार्वती ने निर्णय ले लिया, जन्म कोटि लगी रगर हमारी बंदो शंभु न तरहु कुंवारी। करोड़ों जन्म तक मुझे कुंवारा रहना पड़े मैं मंजूर है, लेकिन परणु तो महादेव ने परणु। एवा वर्णे शु वरु आजे जीवन काले मरी जाए, हूं तो वरु मारा गिरधर गोपाल ने मारो अखंड चुड़लो हो जाए। मीरा अब तो भजनो बहु बनेगा, पहला में बहु भजनो गाता पर હવે ટાઈમ સમય ન રહે, मैं भजन न गया हरसुगीर बापू। नारद जी ने कहा कि हे पार्वती अब तप करो। नारद जी ने मार्गदर्शन दिया और पार्वती ने शिव जी के साथ विवाह करने के लिए तपस्या की। एक तरफ शिव जी ध्यानस्थ, दूसरी तरफ पार्वती तप कर रही है। बीच में तारकासुर का एक असुर हुआ, ब्रह्मा के पास से वरदान लिया कि शिव पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो। मृत्यु का भय गया, हाहाकार। जिनको मृत्यु का भय नहीं है ना वो पाप बहुत करता है, और जिनको मृत्यु का भय रहता है ना वो बहुत पीछे चलता है कि नहीं नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इसलिए मृत्यु को हर पल याद रखना चाहिए। इसलिए कुकर्मों से हम डरेंगे, कुकर्मों से हम दूर रहेंगे। बाद में देवताओं ने निर्णय लिया कि हिमालय की पुत्री शिव के साथ विवाह करने के लिए तपस्या कर रही, तो हम चलो शिव जी को जगाएंगे। कौन जाएंगे? कामदेव को कहा। रति के साथ कामदेव गया, शिव के ऊपर प्रयोग किया। बाबा ने तीसरा नेत्र खोलकर काम को जलाकर भस्म कर दिया। रति को वरदान दिया, यदुवंश में तेरा पति तुझे फिर वापस मिलेगा। रति गई और जहां काम को जलाकर भस्म किया, कामेश्वर महादेव लिंग रूप में भगवान शिव वहां प्रकट रहे। शिव जी फिर से ध्यानस्थ हो गए। अब देवता चिंतित हो गए, अब शिव जी को कौन जगाएंगे? सभी प्रश्नों का निवारण, सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही पात्र, नारदो मुनि सतमः। सभी देवता नारद के पास गए और कहा, नारद जी अब क्या करेंगे? नारद ने बहुत सुंदर कहा कि देवताओं, शिव के साथ ऐसी मूर्खता करा, शिव की तो शरणागति स्वीकारनी चाहिए। हम सभी मिलकर जाएंगे, महादेव को कहेंगे, महादेव हम मेरे दुख का निवारण करे। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ीए घड़ी गाऊ નથી। એમું છે આટો દોડે છે, મારે 7 વાગે વિરામ કરવો છે। देवताओं शरणागति स्वीकारी, महादेव नित्य मिला છે। देवताओं, देव ने कहा हम दुखी हैं, दुख को दूर करना, दुख भंजन, कष्ट भंजन, भीड़ भंजन महादेव है। ये सभी नाम शंकर जी के, भीड़ भंजन महादेव, दुख भंजन महादेव, कष्ट भंजन महादेव। जैसे हनुमान जी का नाम ऐसे शिव जी का नाम है। ओम दारिद्र दुख दहनाय ओम नमः शिवाय, ओम दारिद्र दुख दहनाय ओम नमः शिवाय। गुरु वशिष्ठ महाराज ने एक स्तोत्र गाया है। ये निर्धनता को दूर करने वाला स्तोत्र है, दरिद्रता को दूर करने वाला स्तोत्र है। निर्धनता, दरिद्रता, स्तोत्र की बहुत बड़ी महिमा। अभी नहीं गाएंगे, आप तैयार जो है बोलो हमारे गाँव में। महादेव ने कहा, आप सबके सुख के लिए मैं हिमालय पुत्री पार्वती से विवाह करूंगा, जगत कल्याण के लिए विवाह। विवाह क्यों? ऐसी संतान जन्मे विवाह के बाद हमारे देश और मेरे राज्य और हमारे पूर्वजों का और हमारे परिवारजनों का कल्याण करे, ऐसी संतान जन्मे, इसलिए मैं विवाह करूंगा। क्यों विवाह करेंगे? उनके द्वारा पुत्र जन्मे तो तारकासुर का अंत हो सकता था। बस्ती बढ़ाने के लिए पुत्र पुत्री नहीं, जगत हित के लिए, लोक कल्याण के लिए ऐसा बेटा जन्मे, ऐसी बेटी जन्मे कि समाज का कल्याण करे, समाज में को शुभ मंगल करे। भगवान शिव ने कहा मैं कैलाश चाह रहा हूं। सप्तऋषि को कहा जाओ पार्वती को आशीर्वाद प्रदान करें। सप्तऋषि पार्वती को आशीर्वाद दिया, पार्वती ने अपना तप पूर्ण किया और शिव महापड़ ग्रंथ में शिव और पार्वती की विवाह की कथा पार्वती खंड में है। पवित्र श्रावण मास में पार्वती खंड का पाठ करें, हो सके तो पूरी रुद्र संहिता का पाठ करें। शिव पार्वती के विवाह की कथा है, सुंदर सुंदर कथा है। शिव पार्वती विवाह के बाद विचरण की कथा है, विचरण के बाद भगवान शिव और पार्वती के द्वारा पुत्र कार्तिकी की कथा है।
जो देवताओं के सेनापति हैं। इसलिए भगवान शिव जी ने वचन दिया है कि हे कार्तिकेय, कोई भी मेरा भक्त मेरे सामने तेरी स्तुति करेंगे, तेरा नाम लेंगे, कोई भी क्षेत्र में वो सफल होगा। भगवान कार्तिक की महिमा है, बाद में भगवान गणेश जी की महिमा है। ये सभी महिमा कुमार खंड में है, बाद में युद्ध खंड में बहुत सुंदर सुंदर कथा है। जितने नाम इतनी कथा, असंख्य ज्योतिर्लिंगों की कथा, बहुत सारी कथा शिव महापुराण अंतर्गत है। अकल्पनीय कथा है। ब्रह्मा ने कहा, हे नारद, कहां लगी कथा कहूं? अंत नारद जी एक ही महिमा है, शिव नाम तरिम संसार बन तरंते तय, संसार मूल पापानी, इस संसार के पापों में से मुक्त होना है तो एक ही बात, भगवान शिव का भजन करो। अंत ब्रह्मा जी ने नारद जी को नाम का बोध दिया है। इतनी कथा सुनाकर हमें क्या कहा ब्रह्मा जी ने? बस नाम लीजिए आप, और कुछ नहीं। आपको भी मैं ही कहता हूँ, कुछ भी ना हो सके, पूजा अनुष्ठान उपासना करता जाओ, घरनु काम लेता जाओ, हरिनु नाम, बस वही जीवन की साधना है। ब्रह्मा ने यही कहा है, जो नाम महात्म्य है, शिव नाम, शिव नाम, शिव नाम तरिम प्राप्यम। सुंदर नाम की महिमा है। एक भवसागर तैरने का श्रेष्ठ साधन है, उससे बड़ा कोई साधन है ही नहीं। इसलिए आपके जीवन पर भगवान का नाम होना चाहिए। हलता चलता बैठता उठता खाता पीता ऊँगता जागता, घर में वन में शमशान में, कोई भी अवस्था में अरे स्नान किया है, नहीं भी स्नान किया, लेकिन मुख में से नाम छूटना नहीं चाहिए। बस यही कथा का उपदेश, यही कथा का बोध रहेगा। ब्रह्मा जी ने भी नारद जी को यही कहा, शिव नाम तरिम प्राप्यम संसार बंधि तरन्ति ते, संसार मूल पापानि तानि नश्यन्त्य संशयम्, तानि नश्यन्त्य संसार के मूल पाप में से मुक्त रहना है तो भगवान का नाम लीजिए। कितनी सुंदर बात। संसार मूल भूतानाम पापानाम महामुनि, हे महामुनि नारद, हे नारद जी, संसार मूल भूतानां पातकानां महामुने, शिव नाम कुठारेण विनाशो जायते ध्रुवम्। जड़ों में से पाप को उखाड़ फेंकने वाला कुआड़ा, कुंठार એટલે कुआड़ो, पाप को उखेड़ कर फेंकने वाला, ये शिव नाम है। शिव नाम, शिव नामामृतम् पेयम्, शिव नाम रूपी जो अमृत का पान करते हैं, पाप दावानलर्हिते, पाप रूपी दावानल के दुख से मुक्त रहना है तो शिव जी का नाम लीजिए। पाप दावानितप्तानां शांति सेन विना नहीं, शांति सेन विना। शिव के भजन के बिना किसी को शांति मिली नहीं और मिलने वाली भी नहीं है। इसलिए क्या करना है? इतने दिन कथा सुनी, बस मुख में शिव का नाम होना चाहिए, भगवान का भजन करिए। हलता चलता बैठता उठता खाता पीता उठता जागता हर पल हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। जप ले शिव का नाम प्यारे, जप ले शिव का नाम, बोलिए रात में, जप ले शिव का नाम प्यारे, जप ले शिव का नाम महादेव। नाम लेकर बीते ये हर सुबह और शाम, जप ले शिव का नाम प्यारे, जप ले शिव का नाम, जप ले शिव का नाम प्यारे, जप ले शिव का नाम। एक
पानी की हर एक बूंद देती जिंदगानी। अंबर से बरसे जमीन से मिले, नीर के बिना तो भैया काम ना चले। अंबर से बरसे जमीन से मिले, नीर के बिना तो भैया काम ना चले। नाम लेकर बीते हर सुबह और शाम, जप ले शिव का नाम, जप ले शिव का नाम, जप ले शिव का नाम प्यारे, जप ले शिव का नाम। अरे बात सुन ले कैलाश में ताल देने वाली। कहाँ से आया और कहाँ तुझे जाना है, खुश नहीं जो बातें भी गाना है। ओ, 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 कहाँ से तू आया और कहाँ तुझे जाना है, खुश है वही जो महादेव ही ठिकाना है। चल चल चलती हवाएं करे जो, सारा जग चले यार शिव जी की ओर। चल चल चलती हवाएं करे जो, सारा जग चले यार शिव जी की ओर। नाम लेकर बीते ये हर सुबह और शाम, जप ले शिव का नाम प्यारे, जप ले शिव का नाम, जप ले शिव का नाम प्यारे, जप ले शिव का नाम। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव नाम जप ले तो होगा बेड़ा पार, गिरिनाथ के शरण में आ जा एक बार। शिव नाम जप ले तो होगा बेड़ा पार, गिरिनाथ के शरण में आ जा एक बार। नाम लेकर बीते हर सुबह और शाम, जप ले शिव का नाम, जप ले शिव का नाम, जप ले शिव का नाम प्यारे, जप ले शिव का नाम, जप ले शिव का नाम प्यारे। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में महादेव की कथा को विराम दे दिया। नारद जी ने कथा श्रवण किया। पहले तुम बेजन क्या गया था? वृंदावन गया था। ठीक, हाँ। बाकी भी एक मास
આવું જોઈએ ને પહેલા દિવસેથી. તો હું રોજ ગોતા કરું કે આ બે જણા ક્યાં છે. હરે કૃષ્ણ હરે રામ, હરે કૃષ્ણ હરે રામ, હરે કૃષ્ણ હરે રામ, હરે કૃષ્ણ. એમની સાથે 9 દિવસ એના ઘરે રોકાણો જોઉં. 9 દિવસ મજા કરી અમે. હરે કૃષ્ણ હરે રામ, હરે કૃષ્ણ હરે રામ, હરે કૃષ્ણ. એક મિનિટ ગાઈજો નહીં. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે હરે बाके बिहारी हे गोकुल के नंद श्रीनाथजी ठाकुर ठाकुर हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे ये मारी कमाल नहीं, मारा शंकर मित्रों की कमाल है. हम साथ हैं, हम संगात हैं. बाकी तो આ તો જોરથી બેલીએ તો આપણે માઇક બેસી જાય. આજે બાપુ ગાતા હતા, હું એની પીડા સમજતો હતો.